पढ़ा था, आज हम हाउ टू ऐड इमेज टू योर वेब पेज पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। By now you know enough to write a very nice text-based home page, but it is the ability of the web to provide pictures, technically called images, graphics or sometimes icons, that has made it so popular. You will learn how to place an image on your page. मतलब हम अपने पेज में इमेज कैसे इंसर्ट कराते हैं ये आपको पढ़ना है। तो प्लेसिंग एन इमेज ऑन योर पेज, ये हमारी हेडिंग है, प्लेसिंग एन इमेज ऑन योर पेज। ठीक है, तो द कमांड टू प्लेस एन इमेज इज कांस्टेंट। यू विल यूज द सेम फॉर्मेट एवरी टाइम। नाउ माइट बी अ गुड टाइम टू टॉक अबाउट वेयर टू स्टोर एवरीथिंग ऑन योर वेब सर्वर, बिकॉज यू आर स्टार्टिंग टू कॉल फॉर एडिशनल आइटम्स टू फिल अप योर होम पेज। ठीक है, until now all you old was put text on the page, now you are going to place an image. पहले क्या जाना पड़ेगा आपको, इमेज में जाना पड़ेगा। At this point in your HTML career, it is a good idea for your place whatever image you are going to use in subdirectory called images. That means place the image in a directory to be called images under the directory where your web page are located. देखिए जहां पर वेब पेज लोकेटेड होगा, which would be the root directory for your site. Here the format for placing an image. देखिए बुक में पेज नंबर 92 आपको ओपन करना है और इसमें एक सिंटैक्स दिया है, वो सिंटैक्स हमको HTML में लिखना पड़ेगा। देखिए लिखा है इमेज src इक्वल टू और इन्वर्टेड कामा में लिखा है image.gif, मतलब gif से इमेज ली जाएगी। alt इक्वल टू सम टेक्स्ट विथ 32 और हाइट 32 और इसको टैग के साथ बंद कर दिया गया है। ठीक है, तो बाय रिप्लेसिंग image.gf with the image file name you get that image in your HTML page. Here's what's happening the image element parameters. तो इसमें देखिए 5 पॉइंट हमें पढ़ना है। फर्स्ट है image stand for image, it announce to the browser that an image will go here on the page. Yes, the image will pop up right where you write in the image tag. ठीक है, src stand for source. This again is an attribute, a command inside a command. It's telling the browser where to go to find the image. Again, it's best for you to place the image you want to use in a subdirectory called images. This way you can call for the image by name with just the subdirectory name in front of it, like this. Image names GIF. ठीक है, image GIF is the name of the image. Notice the following the same type of format as your HTML document. ठीक है, there is a name image, then a dot, and there is a suffix GIF. alt stand for, देखिए जो सिंटैक्स इसमें लिखा है पेज नंबर 92 में, ये 5 पॉइंटों में उसी को एक्सप्लेन किया गया है कि इमेज सार्क क्या है, इमेज GIF क्या है, alt क्या है, टेक्स्ट क्या है, विड्थ क्या है, हाइट किया गया है, ये पूरे 5 पॉइंट में एक्सप्लेन किया गया है। तो हम alt पे आते हैं। alt stand for alternate text. This tells the browser that if it can find the image, then just display this text. It also tell anyone who can view your image what the image is about. For example, display you are using a screen reader. I mentioned it search engines. When you mouse over the image, the alternate text pop up. ठीक है, some text is where you put the text describing your image. देखिए width के लिए क्या लिखा है, width stand for the width the image in pixels. It can range from 1 pixel to well just about any number. When you mouse over the image, the alternate text pops up. Some text is where you put the text describing your image. ठीक है, फिर इसमें देखिए width का हो गया आपका, height का देखिए height stand for as you might guesses the height of the image in pixel. Again, the height can be just about anything, but generally will be less than the height of the web browser. Here is an example in HTML page. देखिए HTML पेज में पेज नंबर 92 में देखिए फिगर 10.5 दिया गया है। ठीक है, उसमें आपको HTML देखिए लिखा है
एंकर टैग के साथ में, मतलब टैग के साथ में क्लोज किया गया है। फिर बॉडी लिखा है, फिर इसके बाद इमेज में आपको वही चीज लिखना है कि कहां से आप इमेज इंसर्ट करा रहे हैं, तो इसी फॉर्मेट में आपको लिखना पड़ेगा। जैसे हम मान लीजिए अगर इमेज GIF है तो इमेज GIF लिखेंगे, है ना। अगर अदर की है, मतलब मान लो पावर पॉइंट की है, सब अलग अलग होती है ना, तो वही हमको पाथ देना पड़ेगा। पाथ का मतलब कि कहां से, कहां पे आपने शेप किया है, ठीक है। तो ये सिंटैक्स जो आपको दिया है पेज नंबर 92 में, उसी सिंटैक्स को आपको लिखना पड़ेगा HTML में। देख लीजिए आप फिगर 10.5 में पूरा लिखा भी गया है, ठीक है। लिंकिंग द वेब पेज। The home page of a website always has link known as hyperlink, ठीक है, which when clicked take the visitor to some other page of the website. The text by clicking on which we move to another page is called as hypertext, ठीक है। फिर इसके बाद हमको पढ़ना है एंकर टैग। ये टैग एक साथ लिखा हुआ है, ठीक है। तो the tag used for hyperlink in HTML document is known as the anchor tag. HTML में हाइपरलिंक कराने के लिए हम एंकर टैग का यूज करते हैं। इट इज यूज्ड एज एंकर टैग, इसको एंकर टैग पढ़ेंगे। इट इज ए कंटेनर टैग, ये कंटेनर टैग है। द वेब पेज विच इज टू बी लिंक्ड इज स्पेसिफाइड विद इन द एंकर टैग यूजिंग द href एट्रीब्यूट। href एट्रीब्यूट मतलब हाइपरलिंक कराने के लिए हम इसका यूज करेंगे। तो देखिए इसमें सिंटैक्स जो लिखा हुआ है एंकर टैग के अंदर में, देखिए AHREF इक्वल टैग के अंदर लिखा है फाइल नेम, फाइल कहां से ली गई लेना है हमको, और HTML क्लिक हियर, और इसको क्लोज भी किया गया है, ठीक है। तो यहां से क्या करते हैं हम, एंकर टैग की हेल्प से क्या करते हैं, हाइपरलिंक करते हैं, है ना। किसी भी फाइल को हम हाइपरलिंक कर सकते हैं। फिर इसके बाद क्या है href एट्रीब्यूट, href एट्रीब्यूट, ठीक है। तो इट क्रिएट्स ए हाइपरलिंक एंड कनेक्ट्स द फाइल स्पेसिफाइड विद द करंट वेब पेज विद द हेल्प ऑफ द टेक्स्ट क्लिक हियर enclosed within the on and off and anchor tag. When the page is viewed in the web browser, the text click here will appear underlined and on clicking will open the link page in the browser window. मतलब वो ब्राउजर विंडो में ओपन होगा जो भी पेज हमने लिंक किया है। We will create two web page as a, जैसे देखिए एग्जांपल्स में दिया गया है pollution.html and it has link to another web page is water pollution HTML। मतलब इसका मतलब देखिए फिगर 10.9 में, फिगर जो है आपका 10.9, हाँ देखिए जो फिगर 10.9 है उसमें आपको HTML की विंडो में लिखा गया है लिंक कराने के लिए कैसे कैसे आपको लिंक कराना है, उसी टाइप से आपको लिखना पड़ेगा। लिखा देखिए होम पेज pollution.html, होम पेज डिस्प्ले इन ब्राउजर, और वाटर pollution.html और वाटर pollution.display इन वेब ब्राउजर। अब इसका अपन आउटपुट देखते हैं। देखिए पोल्यूशन लिखा रहेगा, इट इज मेकिंग आवर सराउंडिंग dirty and not suitable to live. Pollution can be half of the following types: water pollution, noise pollution, ठीक है। इसका आपको जो HTML में जो प्रोग्रामिंग है वो आपको फिगर 10.9 में लिखी हुई है, वहां से आपको देखना है। तो यहां से हमारा ये चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू।